Last topic in the research methodology series is report writing. So here we are going to study, you know, how to write report, what are the formats, what are the contents, what are the importances of report writing. Introduction. Report writing is a final task of the researcher. Okay, हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम इंट्रोडक्शन फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च. उसके बाद हमने देखा व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन, व्हाट आर द डेटा टाइप्स, what are the methods of collection of data, sources of data. उसके बाद sampling techniques, then research design, types of researches. Then we studied citation styles or hypothesis testing, etc. And lastly, we are going to have report writing. So this is the final task of the researcher. A document in which given problem is examined for the purpose of conveying information, report finding, putting forward ideas and sometimes making recommendations. सो एक ये डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपने फर्स्टली आपने जो प्रॉब्लम लिया था फॉर एग्जामिनेशन फॉर रिसर्च, तो इस डॉक्यूमेंट में यू आर गोइंग टू कन्वे द इंफॉर्मेशन. आप जो कुछ भी डेटा कलेक्ट करोगे उससे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, फाइंडिंग्स मिलेंगी. After analysis the data, you will have some ideas so that other researcher can go for the further improvement, further research, and sometimes you will have some recommendations. So this is one a whole document, that is report writing, or you can say it is a communication from someone to other who wants to use the information. What are the importance of report writing? It helps to communicate of research findings. The findings and suggestions of the research report helps to take proper decisions. So what are your findings? After the data collection, you will get some findings and one researcher can communicate those findings with other researchers, with other readers. And the findings and suggestions can help to take the proper decisions. मतलब उस findings से आपको पता चलेगा कि क्या problems थी, उसका solution क्या होगा. So उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉय मोटिवेशन पर रिसर्च करना है, तो मैंने एक कंपनी ली, उसके बाद उस पर रिसर्च किया, उस एम्प्लॉय का पूरा डेटा निकाला, उस उनसे बात की, डेटा कलेक्ट किया, व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स, वो सेटिस्फाई है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसके क्या रीजंस हैं, अगर वो सेटिस्फाई है तो क्यों वो सेटिस्फाई है, व्हाट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑफ देयर सेटिस्फिकेशन. सो आफ्टर द एनालाइजिंग डेटा मुझे कुछ फाइंडिंग्स मिलेंगे, मतलब अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो उस रीज़न के हिसाब से मैं कुछ सजेशंस दे सकती हूँ ताकि उनका सेटिस्फैक्शन बढ़े. So I can take some proper decisions, or the particular organization can have the proper decisions with the help of these findings and suggestions. Next is it identifies the areas of further research. मतलब मैंने कुछ फैक्टर्स यहाँ पे, कुछ आस्पेक्ट्स फैक्ट्स यहाँ पे कंसिडर किए हैं. अगर कुछ फैक्ट्स मैंने कंसिडर नहीं किए तो फर्दर रिसर्च के लिए उन रिसर्चर्स को वो एरिया आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स न्यू इंसाइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. मतलब जो कुछ भी रीडर है, मेरे जो कुछ भी अदर रिसर्चर्स हुआ गोइंग टू रीड माई राइटिंग, my work, so they will get some new insight and opportunities. So writing the report. While writing the report, researcher should arrange following things. आपके पास अगर ये 3 चीजें हैं तो आप रिपोर्ट लिख सकते हैं. फर्स्ट इज डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ द चैप्टर्स. मतलब
सीक्वेंस ऑफ द रिपोर्ट, चैप्टर 1 में क्या होगा, चैप्टर 2 में क्या होगा, चैप्टर 3 लाइकवाइज। चैप्टर 1 में मोस्टली होता है इंट्रोडक्शन और रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेकंड review of literature, then third profile of the companies, fourth theoretical concepts, fifth data analysis and interpretation, then finding, suggestion and conclusion. So this is the outline of your chapters, and then you can write the content in each chapter. Note charts arranged in order of chapters. So आपको वो चार्ट्स जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसके चार्ट्स या फिर स्टैटिस्टिकल टेबल्स, रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस, ये आपके पास होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, देन ओनली यू कैन राइट द रिपोर्ट। ओके, सो आउटलाइन के हिसाब से ईच चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, वो सब डेटा आपके पास होना चाहिए। टाइपिंग द रिपोर्ट, रिपोर्ट आपका पूरा लिख के हो गया है, बट वहाँ पे कुछ रूल्स है थीसिस राइटिंग के, जहाँ पे आपको वो फॉलो करने ही होते हैं। सो पेपर यूज करना है, वो जब आप प्रिंट करने जाओगे रिपोर्ट, तो पेपर शुड यूज्ड क्वालिटी बॉन्ड पेपर, कि क्वालिटी बॉन्ड पेपर पर ही आपको प्रिंट निकालनी है। टाइप्ड ओनली वन साइड, ओके, वन साइड पे ही आपको टाइप करना है, उसके पीछे वो ब्लैंक छोड़ना है। मार्जिन, लेफ्ट साइड मार्जिन शुड नॉट बी लेस देन 1.5 इंचेस, राइट टॉप एंड बॉटम शुड बी 1 इंच। स्पेसिंग डबल साइड होती है। हेडिंग टाइटल के बारे में, चैप्टर हेडिंग और सेक्शन हेडिंग वो सेंटर में होनी चाहिए, कैपिटल में होनी चाहिए। सब डिवीजन मतलब सेक्शन हेडिंग के आगे भी कुछ डिविजन्स होती है, हेडिंग्स होते हैं, वो टाइप्ड फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन इन लोअर केस एंड अंडरलाइन। मतलब फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में मैंने कस्टमर सेटिस्फैक्शन टॉपिक लिया, तो इंट्रोडक्शन एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी द चैप्टर 1, it should be in capital and centered. After that I will have what is customer satisfaction or definition of customer satisfaction. So this is my subdivision heading. It will typed from left margin in lower case, not capital, lower case and underline. Title of appendices and tables capitalized and centered. मतलब आप जो कुछ भी आपने टेबल्स ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा एनालिसिस पे आप जो कुछ भी लिखोगे उसका हेडिंग, टाइटल होगा वो कैपिटल में होगा और सेंटर में होगा। टेबल, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स प्लेसेस नियर टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट के नीचे या फिर ऊपर ही होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। शॉर्ट टेबल्स कैन बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, शॉर्ट टेबल से तो वो पैराग्राफ के बीच में आप इंक्लूड कर सकते हैं। पेजिनेशन, पेजिनेशन मतलब पेज नंबर्स वो कंटिन्यूस होने चाहिए, अरेबिक न्यूमेरिकल में ही होने चाहिए। सो दीज आर सम रूल्स व्हाइल टाइपिंग एंड प्रिंटिंग द रिपोर्ट। लेआउट ऑफ द रिसर्च, नाउ लेआउट ऑफ रिसर्च मतलब सीक्वेंस होता है आपका रिपोर्ट का, तो वहाँ पे 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी पेजेस, देन मेन टेक्स्ट एंड देन एंड मैटर। सो द फर्स्ट पार्ट इज प्रिलिमिनरी पेजेस। प्रिलिमिनरी पेजेस ये सबके ही कंपल्सरी होते हैं, जिससे आपका पूरा प्रोजेक्ट किस पर है, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है, वो सब प्रिलिमिनरी पेजेस से पता चलेगा। सो फर्स्ट इज कवर एंड टाइटल पेज। सो कवर एंड टाइटल पेज में क्या क्या आएगा, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेड बाय whom, on what date, for what purpose, written by whom, etc. The format is given by the institute or by the university. Then declaration में from the research student and guide, आपको एक डिक्लेरेशन का फॉर्मेट होता है कि मैंने ये किया है, ये मेरे प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है,
ऐसे स्टूडेंट्स की तरफ से और गाइड की तरफ से भी एक डिक्लेरेशन होता है। फॉरवर्ड मतलब इंडस्ट्री सर्टिफिकेट या फिर इट इज रिटन बाय अथॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर और द स्पॉन्सर। Then preface. Preface matlab how the subjects was chosen, what are the need, what are the importance. Preface. Acknowledgement matlab you are going to show some gratitude to your helpers to who have already supported in your research, your assistants, etc. Table of contents मतलब यहाँ पे summary and it is a summary or it is a guide to various segments. Then list of tables and illustrations. So यहाँ पे what are the tables, how many data you have collected. Likewise you are going to have tables uh, from that data. Then that is for example age, gender, and some questions are there. So list of tables. Summary matlab what is the study about, abstract type. So this is summary. नेक्स्ट इज मेन टेक्स्ट. सो मेन टेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो मेन आपका रिसर्च है वो पूरा का पूरा मेन टेक्स्ट में आएगा. उसमें 4 पार्ट्स मैंने डिवाइड किए हैं. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन पार्ट में आएगा थेरोटिकल बैकग्राउंड ऑफ योर टॉपिक, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, स्कोप ऑफ स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस एंड सम डेफिनेशंस. एंड सेकेंड इज डिजाइन ऑफ द स्टडी. डिजाइन ऑफ द स्टडी मतलब रिसर्च डिजाइन. रिसर्च डिजाइन में आपका मेथोडोलॉजी आएगा, डेटा कलेक्शन मेथड, सोर्सेस ऑफ डेटा, कहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया है, सैम्पलिंग प्लान, आपने सैंपल कैसे सिलेक्ट किया, कौन सी मेथड यूज की, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, देन डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस प्लान, आप डेटा प्रोसेस कैसे करोगे, कौन सी मेथड आप स्टैटिस्टिकल मेथड आपने यूज की for analysis, overview of the report and limitations. Okay, then third is result findings and discussion. So यहाँ पे आपका पूरा data analysis का part आएगा. Brief description of theory, citation of relevant findings and previous studies, then a presentation of summary table, presentation of findings. Okay, then last is summary, conclusion and recommendation. After having these 3 parts, the last part of the main text is summary of whole report and then conclusion drawn from the findings. So this is the main text. Then the end part. End part मतलब last का जो part होता है जहाँ पे हम बिब्लियोग्राफी या फिर एपेंडाइसिस लिखते हैं. सो एपेंडाइसिस मतलब कॉपीज ऑफ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट लाइक इंटरव्यू शेड्यूल, क्वेश्चनर. जो कुछ भी आपने क्वेश्चनर बनाया था वो क्वेश्चनर आपको अटैच करनी है. डेटा कलेक्शन के लिए क्या क्या यूज़ किया था, इंटरव्यू शेड्यूल कैसा किया था, उसके कुछ पेपर्स होंगे तो आपको वो अटैच करने हैं. बिब्लियोग्राफी मतलब अपेंडिसेस में ये भी होता है कि टेक्निकल डेटा अगर कोई है सैम्पलिंग का या फिर कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, any other evidences regarding your research report that is to be attached. Bibliography means a list of preferences, footnotes, books, magazine, newspaper, जहाँ कहीं से भी आपने वो डेटा कलेक्ट किया है उसका पूरा डिटेल आपको बिब्लियोग्राफी में लिखना है. देन चैप्टराइजेशन मतलब चैप्टर्स की, चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 2, चैप्टर 3 वो आपको ब्रीफ में लिखना है. दैट इज एंड पार्ट. सो दिस इज अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग. यहाँ पे ये रिसर्च मेथोडोलॉजी की सीरीज कंप्लीट होती है. ये 3 पार्ट में अगर आपने रिसर्च प्रेजेंट किया तो आपका काम पूरा होता है. थैंक यू.